Good morning, dear students. I am Pragya Parekh from Civil Engineering Department, Sister Gandhinagar, Bhopal. I welcome you all in this technical training program of Environmental Engineering. Before going further, let us discuss about the aim of this training program. In this training program, we will cover each and every topic related to many competitive exams. Okay, and it is very important subject in civil engineering. Okay. So first of all, let's see that what we're going to study in this 3 lectures. Okay, I have divided this technical training into 3 parts. The first part will cover uh, raw water engineering, the second part will cover wastewater engineering, and the third part will cover waste disposal management and air, water and noise pollution. Okay, so here is the very basic diagram of raw water engineering, in which you can see there is a source and there is a town, and in between the source and town there are some processes. Okay, so we will study about each and every process in details. Let us consider a town where there is a need of distribution system. Okay, now first of all what we are going to do is we will see that how many people live there. Okay, after calculating the number of people, after calculating number of people, what we're going to do, we will search a source of water. Okay, we'll search a source from where we can collect the water and can transport the water to the town. Okay, so second work is our finding the source. After finding the source, we will collect the water from the source and then we will convey it to the treatment plant. Why we are conveying it to the treatment plant? Because right now the water is in a normal state, it may be contaminated, it may have some waste. Okay, so first of all we have to check it that whether it is pure or contaminated. If it is contaminated, we have to treat it well so we can drink it properly. So after treating this water, we will again pass it to the distribution system and then it will be transported to the town. Okay, so we will study about each and everything in detail. First of all, let's see what are the various water sources. So generally there are two types of sources. The first one is surface source and the second one is subsurface source. Surface source are the source in which the water is on the above the earth. Okay, and in the subsurface the water is beneath the earth. Okay, examples are surface sources, examples are ponds, lakes, streams, etc. Subsurface sources are springs, infiltration wells, infiltration galleries, etc. So source you will choose will depend that how much water you require. Okay, water quantity estimation. Now the second important thing is how we'll calculate that how much water is required for a town. Okay, so for this purpose we need two things. The first thing is consumption rate, the second thing is population to be served. Okay, if I know that how much water a single person consume and if I know the total population of a town, so after multiplying the both things we can get the total quantity of the water. So it is an important question that how to calculate quantity of water. Second thing is water demand. What do you mean by water demand? Water demand is the total demand by a single person. This demand will include each and every aspects like industrial demand, commercial demand, public demand, thefts and losses, etc. Okay. The short form of water demand is LPCD, liter per capita per day for a single person. Now, water consumption can be calculated as, we can calculate water consumption of a single person, or we can calculate the total water consumption. Total amount of water consumed daily in liters divided by total number of persons served in the city. If I know that what is the volume of consuming water, so what I can do is total volume of water divided by number of people. So I will get how much water a single person consume. Okay, and if I want to know about a year, we can multiply it by the 365. Now, various types of water demand. It is also a very important question. So there are generally 6 types of water demand: residential demand, commercial demand, industrial demand, firefighting demand, public use, water lost and unaccountable water. Okay, residential demand means the demand which is related to your domestic use, domestic need like bathing, washing utensils, washing clothes, etc. Commercial demand, water which is required for the institutions, cinema hall, etc.
Industrial demand, water which is used for industries. Firefighting demand, for firefighting we need a particular amount of water. Public use, for parks, for public places we need to consider this factor also. Water lost or unaccounted water, due to not proper joints, sometimes what happens is the water is leaked a lot. Okay, so for accounting that thing we have to consider water lost also. Now, what are the various factors on which water demand will depend? So, the first factor is climate. Next is geographic location, size, population, and economic condition of community, extent of industrialization, metered water supply, cost of water, supply pressure. If I compare Rajasthan with Kashmir, so what we'll see is Rajasthan is consuming more water than Kashmir. So it is happening because of climatic change. Okay, the both places are at different places, the both have different climates. Geographic location, it will definitely depends on geographic location. Size, population, and economic condition of community, it plays a major role. If you live in a very big city, so you will consume definitely more water. Population, it is not directly connected, but it is indirectly connected. Economic condition of community, lifestyle, all these things will indirectly affect our consumption of water. Extent of industrialization, if industrialization is growth is rapid, so we have to consider an extra factor for it. Metered water supply, if there is a meter for water, so people will consume it properly. Cost of water, if there is a huge cost of water, then people will use it precisely. Supply pressure, if there is a more pressure, there will be more wastage, so it is also plays an important factor. Next, let's see domestic demand. Details of water requirement for domestic demand, domestic purpose. So in this slide we can see that bifurcation of the domestic demand, that 55 lpcd will be required for bathing, 20 lpcd required for washing clothes, 5 lpcd required for drinking, 5 lpcd required for cooking, 10 lpcd required for washing of utensils, 10 lpcd required for washing of house, 30 lpcd required for flushing, and the grand total will be 135. So this 135 is the minimum value for a domestic demand, and it can be increased to the 350 lpcd. Will depend on the lifestyle habits of the people. Now let's see municipal water demand. What I want to calculate the total requirement of water for a year. So how am I going to calculate is, first of all let us assume that there is a person who consume x liter per day. Okay, and the population of the town is P. So if I want to calculate the total amount of water for a single day, it will be x into P. And now if I want to calculate it for a year, so what I am going to do is I will multiply it by the 1 year. Okay, so T is the time, that for how much time you want to calculate. Now water demand of a community. What will be the various water demand? We have already discussed domestic, industrial, and institutional, public use, fire demand, demand for compensation of theft and losses. Okay, the next slide is very important, in which some values are given. Okay, the minimum 135 lpcd is required to meet the domestic demand, and it can be vary up to 200 lpcd. Minimum 50 lpcd required for industrial demand, 20 lpcd required for commercial use, 10 lpcd required for the public use, and 55 lpcd required for compensate losses and thefts. Now let's see variation in water demand. Look, I have considered an average demand for a town. Okay, but there is no such thing like average. Okay, it may be happen that someday many people are using more water, or some in whole day, not a person using continuously water, he is using somewhere he is using less water, somewhere he is using more water. Okay, so we cannot say that a person will use throughout the water the same quantity. Okay, so there is a variation in water demand. It will be
maximum in the morning and evening, and it will be the least in the night. Okay, so there is a formula which calculate that how much, how what will be the factor for, if I account a factor for hourly demand for daily demand, so we can calculate that factor. Okay, so it is also very important question that what will be the percentage of maximum daily demand to the average daily demand. So maximum daily demand is 1.8 times of the average daily demand, and maximum hourly demand is 1.5 times of the maximum daily demand of water. So these both formula are important. Q max daily equals to 1.8 times of Q average. Q max hourly equals to 2.7 Q average. Okay. Next is coincident draft. What is coincident draft is when we consider the maximum daily water demand plus fire demand will be considered as the coincident draft. It is said coincident draft because it is very rare, it will be very rare that on the when the people are using the most water, at the same time fire fire begins or somewhere fire burst out. Okay, so it is a very rare case. So I have considered, we will consider the most severe case for designing our distribution system, and the total demand will be maximum hourly water demand. So we will design everything related to the maximum value. Okay, it may be coincident draft, it may be total draft. Now let's see the component of water and its designing rate and designing period. So the first one is dams. It is designed for maximum daily water demand, and its designing period is 50 years. Intakes. Dams are used for storing the water. Intakes are the structure which is used for collecting the water. It is designed for maximum daily water demand, and it is designed for 30 years. Conveying main pipeline maximum daily demand के लिए डिज़ाइन होता है ये भी. Pumps is designed for 2 into Q max daily. Okay, we have taken a big pump here because pump is something which cannot be replaced in a short period. Okay, so we have to buy it for a long term. Treatment units are generally designed for 1.8 times of Q max daily. Rapid sand filters are designed for 2 into average daily demand, and for 15 years. Water distribution system is designed for total demand, and for 30 years. Distribution reservoir maximum hourly demand in 15 years. In the next slide we can see the same thing. The domestic demand 135 liter per capita per day will be the minimum, and it can be as high 350 liters per capita per day. Industrial commercial demand will be minimum 45, and it can be 450. Generally we for public utility we take 5% of the total consumption. In the next table we can see the average of the consumption. Domestic consumption is 160 LPCD, industrial is 135, public use is 45 LPCD, losses and waste 62 LPCD. Next is firefighting demand. The per capita fire demand is very less on an average basis, but the rate at which the water is required is very large. The rate of fire demand is sometimes treated as a function of population and is worked out from following empirical formula. For calculating fire demand, there are some formulas in the next slide. So we can see in that American Insurance Association, Cushing's formula, Freeman's formula, Ministry of Urban Development manual formula. So we have some formulas for calculating the fire demand. Okay, the quantity of fire demand is very less, but the rate of fire demand will be higher. Factor affecting per capita demand. What are the various factors? The first factor is size of the city. Per capita demand for big cities is generally large as compared to the smaller towns, as big cities have seaward house. Presence of industries. It will also affect climatic conditions, habit of people and their economic status. Quality of water. If water is aesthetically and medically safe, the consumption will increase as people will not resort to private wells, etc. Okay, so these are the some basic factors which will affect the per capita demand. Now let's see some definitions. First definition is annual average day demand. Average daily demand over a period of a year. What will be the average demand throughout the year will be known as annual average demand. Maximum day demand, amount of water required during the day.
Peak hour demand, amount of water required during the maximum consumption hour in a given day. Annual maximum daily demand over a period of 1 year. In the absence of water demand data, use the following equation. P equals to 180 t is to power minus 0.10. This is the formula which we used for find out the peak factor. So you can put the t in days, okay? So you will calculate the factor. Now maximum daily demand equals to 1.8 times of average daily demand. We already studied about it. Maximum hourly demand will be the 1.5 into 1.8 into average daily demand divided by 25, because we are calculating demand per hour. Population forecasting method. Now if I have decided each and every unit for treatment, for distribution, but I am not going to design it for today or tomorrow. I am going to design it for 30 years, for 50 years. So there is a chance that the population will definitely increase. So I am not going to design it for today's population. I will design it for the population after 30 years. So for that purpose, I have to calculate the future population. So there are some methods for calculating the future population, like arithmetic increase method, geometric increase method, incremental increase method, decrease rate of growth method, simple graphical method, comparative graphic method, ratio method, logistic curve method. The method will depend on the various factors like type of town, age of the town, etc. The next thing is water distribution system. The purpose of distribution system is to deliver water to consumer with appropriate quality, quantity and pressure. Distribution system is used to describe the collectively the facility used to supply water from its source to the point of usage. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? सिंपल एक सिस्टम है जिससे हम क्या करेंगे, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने वाले हैं. रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? द वाटर क्वालिटी शुड नॉट गेट डिटीरियोरेटेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स. लाइक it should be free from rusting. It should have a proper color. It should have a proper size. It should not be very old that it deteriorate the water quality. It should be capable of supplying water at all the intended places with sufficient pressure head. Okay, मतलब कि उसको प्रॉपर हेड के साथ वो पानी भेजे. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ज़्यादा, उसका साइज़ बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि हमें प्रॉपर प्रेशर हेड ना मिले, और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए कि हम ढंग से वाटर को सप्लाई ना कर पाएँ या वो जो मैक्सिमम डिमांड है उसको रीच ना कर पाए. इट शुड बी कैपेबल ऑफ सप्लाइंग द रिक्विसाइट अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फायर फाइटिंग. इट शुड बी कैपेबल ऑफ सप्लाइंग द वाटर एंड ड्यूरिंग फायर फाइटिंग सिस्टम. The layout should be such that no consumer would be without water supply during the repair of any section of the system. हमें कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिज़ाइन करना है कि हमारे डिज़ाइन करने के बाद अगर मान लीजिए कहीं पर रिपेयर वर्क भी होता है तो हम आसानी से वाटर को भेज सकें, मतलब कहीं का काम ना रुके. All the distribution pipes should be preferably laid 1 meter away or above the sewer lines. हमें जितने भी हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पाइप्स रहेंगे उन्हें हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो भी सीवेज पाइप है उनसे दूर रखना है. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने सीवेज पाइपलाइन को और वाटर सप्लाइंग पाइपलाइन को आसपास रखा तो चांसेस हैं कि अगर कहीं से लीकेज हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, जो वेस्ट है वो कहाँ, वाटर में हो सकता है, हमारा जो रॉ वाटर है उसमें ऐड हो जाए. ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. इट शुड बी फेयरली वाटर टाइट एज टू कीप लॉसेज ड्यू टू लीकेज टू दी मिनिमम. जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उनके जो जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए. अगर जॉइंट्स आपके प्रॉपर हैं तो क्या होगा, लॉसेज कम से कम होंगे. लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. जो भी पाइपलाइन लेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पाइपलाइन को हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, वो है डेड एंड सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, रिंग सिस्टम एंड रेडियल सिस्टम. डेड एंड सिस्टम कैसा होता है, जैसे मान लीजिए एक टाउन है, वहाँ पर क्या हुआ, हमने कहीं से पानी भेजा है, तो पानी भेजने के लिए हमने एक जो टाउन बना था वो अनऑर्गेनाइज टाउन था. ठीक है, कहीं पर घर है, कहीं बहुत दूर घर है, तो हमने क्या किया, एक मेन पाइपलाइन से ब्रांच पाइपलाइन बनाई, ब्रांच पाइपलाइन जोड़ी. उस ब्रांच पाइपलाइन से इंडिविजुअल पाइपलाइन थी जो सभी के घरों में गई. ठीक है, ये तब होगा जबकि आपका जो टाउन है वो अनप्लान्ड टाउन है, वहाँ पर जो घर हैं वो कहीं पर भी बने हुए हैं.
नेक्स्ट आता है ग्रिड आयरन सिस्टम। अगर आपका घर प्रॉपर प्लान्ड है तो आप क्या करेंगे, एक मैश जैसा सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैश जैसे सिस्टम को बोलेंगे ग्रिड आयरन सिस्टम। नेक्स्ट है रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक रिंग जैसा बन जाएगा, मतलब एक रिंग जैसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब बन जाएगा तो उसे हम बोलेंगे रिंग सिस्टम। नेक्स्ट है रेडियल सिस्टम। अगर आपका सेंटर में कहीं पर वाटर का सोर्स है और वो रेडियली बाहर की तरफ जा रहा है तो हम उसे बोलते हैं रेडियल सिस्टम। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर। What do you mean by distribution reservoir? Distribution reservoir, also called as service reservoir, is the storage reservoir which store the treated water for supplying water during the emergencies such as during fires, repairs, etc. and also to help in absorbing the hourly fluctuation in the normal water demand। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, जब हमने वाटर को ट्रीट कर लिया है उसके बाद हम वाटर को एक रिजर्वॉयर में स्टोर करेंगे या एक टैंक में स्टोर करेंगे। उसी टैंक का नाम क्या है, सर्विस रिजर्वॉयर। ठीक है, तो हमने जिस टैंक में वाटर को स्टोर किया है उसका नाम है सर्विस रिजर्वॉयर। ये सर्विस रिजर्वॉयर क्या क्या करेगा, किस किस चीज़ों से मीट करवाएगा, इसमें हम वो एक्स्ट्रा वाटर हमेशा फिल करके रखेंगे जो कि फायर के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो भी मैक्सिमम आर्ली डिमांड होती है हम उसके लिए भी वाटर को स्टोर करके रखेंगे, या फिर मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर, क्या क्या फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर के? To absorb the hourly variation in demand, to maintain constant pressure in the distribution means water stored can be supplied during the emergencies। अगर आपने कहीं पर वाटर को स्टोर कर रखा है और मान लीजिए बाद में आप वाटर को ट्रीट नहीं कर पाए, तो ऐसे ऐसे सिस्टम में आप क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका सर्विस रिजर्वॉयर रहेगा वो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है वाटर क्वालिटी। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, वाटर डिमांड पढ़ लिया है, वाटर एस्टिमेशन पढ़ लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग देख लिया है, हमने एक फॉर्मूला देखा है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना पीक फैक्टर कैसे आता है। ठीक है, जो डेली डिमांड के लिए वो है 1.8, जो आर्ली डिमांड के लिए है वो है 1.5 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डेली डिमांड, या फिर कह सकते हैं 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं वाटर क्वालिटी। अब हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें देख ली, अब हम चेक करेंगे कि जो हमने सोर्स चूज़ किया है उस वाटर की क्वालिटी कैसी है। तो हम जो क्वालिटी है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहली जो है वो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड है वो है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, और जो थर्ड है वो है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या आता है, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर और टेम्परेचर। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वो सारी चीज़ें आएंगी उसमें जो कि हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकली जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं हम उसको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। केमिकली जो भी चेंजेस आ रहे होंगे उसे हम बोलेंगे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में टर्बिडिटी क्या होता है, जब भी आप किसी वाटर को जब आप टेस्ट करते हैं, देखते हैं, तो अगर उसमें आपको क्लाउडीनेस दिख रहा है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं टर्बिडिटी। उसके बाद नेक्स्ट है कलर। हमें कलर आंखों से दिख जाएगा कि हो सकता है किसी वाटर का कलर कलरलेस ना होकर कुछ है, जैसे कि वाटर, आइडियल वाटर शुड बी कलरलेस, बट इफ देयर इज अ कलर इन वाटर इट मीन्स देयर इज सम इम्प्योरिटीज। टेस्ट एंड ऑर्डर, sometimes the water may contain some taste and odor because of some impurities like algae, like some gases, CO2, SO4, etc. Temperature, we can feel temperature also, and the ideal temperature should be 25 degrees Celsius, but if there is a very elevated temperature in the water, so we have to calculate it, that we have to check it, that what is the reason behind it, because when there is some process, biological process going on, so the temperature will increase of the water. Next, chemical characteristic, pH. pH plays a very important role, so we have to maintain a proper pH. The pH may be decreased after the various reactions in the water. Next is acidity. Acidity is not good for water, because when we supply acidic water in the pipelines, if the pipeline is made by iron, it will be corroded by it. Alkalinity, the water should neither be acidic nor be alkaline.
both are harmful. If the water will be acidic, it will be harmful for us. If it will be alkaline, it will be sore for us, so we cannot consume that water. Next is hardness. If we have chlorides of calcium, magnesium, or sulfates of calcium, magnesium, so what will happen is there will be some hardness in water. So we have to remove that hardness if it is not in a proper amount. So next is chlorides. Chlorides is also harmful because it is also a part of hardness. Sulfates, iron, solids, nitrates. Okay, these are all solids which is present in water, and it will create some nuisance in the water. Okay. Next is biological characteristic. We have studied about the physical characteristic, we have studied about the chemical characteristic. Now bacteriological या फिर biological characteristic. Bacteria examination of water is very important since it indicates the degree of pollution. If we have more bacteria in the water, it means the water is very much polluted. If we have very lesser amount of bacteria, it means the water is somewhere pure. Water polluted by sewage contain one or more species of disease producing pathogenic bacteria. Pathogenic organisms causes waterborne diseases and may not pathogenic bacteria such as E. coli. देखिए, जब कभी भी हम वाटर को देख रहे हैं या वाटर को जब भी हम टेस्ट कर रहे हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में हमें चेक करना है कि उस वाटर में पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं या नहीं. पैथोजेनिक बैक्टीरियाज ही वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करने वाले हैं, आगे जाके वाटर बॉर्न डिसीजेज करेंगे या फिर कुछ भी बीमारी पैदा करेंगे. ठीक है, इनके सीवियर एग्जाम्पल्स हैं पोलियो, डायरिया, कॉलेरा एक्सेट्रा. A member of coliform group also lives in the intestinal tract of the human being. अब नेक्स्ट बात आती है कि हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैसे रिमूव हुए, कैसे पता चलेगा. तो एक बैक्टीरिया होता है ई कोली नाम का. ठीक है, ये जो ई कोली बैक्टीरिया है ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, और वो जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया बहुत मुश्किल से ख़त्म होता है. इट मीन्स अगर मैं कभी वाटर को देखूँ, वाटर को मैं अगर ई कोली के लिए टेस्ट करूँ, तो अगर वाटर में ई कोली नहीं है, मतलब कि ई कोली एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि बहुत लास्ट तक सस्टेन कर सकता है. अगर वाटर में ई कोली प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब बाकी सब बैक्टीरियाज तो नहीं होंगे. ठीक है, लेकिन अगर ई कोली प्रेजेंट है तो इट मीन्स कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हो सकते हैं. तो ई कोली जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है, लेकिन वो इतना अपने लिए हार्मफुल नहीं है. लेकिन हम सिर्फ टेस्ट करने के पर्पज़ से हम ई कोली का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ई कोली अगर रिमूव हो गया इट मीन्स सारे पैथोजेनिक बैक्टीरियाज रिमूव हो गए. Coliform itself is not a harmful group, but it has more resistance to advanced condition than any group, so it is ensured to minimize the number of coliforms. So coliform group serves as indicator of contamination of water and with sewage and presence of pathogens. कौन कौन से मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं, तो जनरली 3 मेथड्स होते हैं: स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक. नेक्स्ट है अब आगे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर. देखिए कौन इंडियन स्टैंडर्ड मतलब कि कुछ जो इंडिया का जो कोड है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए, उन लोगों ने कुछ वैल्यूज़ डिसाइड कर रखी हैं. ठीक है, कि आपका जो भी है परमिसिबल लिमिट इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होना चाहिए. तो देखिए सबसे पहला है टर्बिडिटी, जिसको हमने कौन सी यूनिट में मेजर किया है, NTU, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट, विच शुड बी लेसर देन 10 एंड शुड नॉट बी मोर देन 25. कलर को हम करेंगे हेजन स्केल से मेजर. देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि जो ये यूनिट है टर्बिडिटी की वो कौन सी है, NTU, FTU, STU. कलर पूछ सकते हैं कि कौन सी यूनिट में आप कलर मेजर करते हैं, तो वो कौन सी यूनिट है, हेजन स्केल. इट शुड बी लेसर देन 10 एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 50. टेस्ट एंड ऑर्डर, the taste should be unobjectionable and odor also should be unobjectionable. pH should be between 6.5 to 8.5. Total dissolved solids in milligram per liter should be lesser than 10 and should not be more than 50. टोटल हार्डनेस कैसी होनी चाहिए, अनऑब्जेक्शनेबल होनी चाहिए. मतलब हार्डनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है. अगर किसी कोई वाटर ज़्यादा हार्ड है तो वो क्या करेगा, जो सोप का लेदर है वो फॉर्म नहीं होगा. ठीक है, तो समवेयर क्या होगा, हम जो सोप यूज़ कर रहे हैं वो सोप ज़्यादा यूज़ होगा, तो उस सोप के ज़्यादा कंजम्पशन के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप रिमूव नहीं कर पाते तो ये कोई हार्मफुल नहीं है. इसीलिए इसकी जो लिमिट दी हुई है वो दी हुई है, मतलब इसको बोला अनऑब्जेक्शनेबल. इट मीन्स की कोई लिमिट नहीं दी है. क्लोराइड्स क्या है, क्लोराइड्स अगर ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा बॉडी में तो वो
हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो उसकी मिनिमम वैल्यू है 200 to 250 और मैक्सिमम है 1000। सल्फेट्स की वैल्यू है 150 to 200, मैक्सिमम वैल्यू 400। फ्लोराइड्स डिज़ायरेबल है 0.6 to 1.2 और मैक्सिमम है 1.5। फ्लोराइड से क्या होता है, हड्डियाँ गलने लगती हैं, तो इसीलिए क्या है, फ्लोराइड को हम एक लिमिट से ज़्यादा नहीं दे सकते। और फ्लोराइड अगर कम हो जाए तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे। तो फ्लोराइड को हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में यूज़ करना है, ठीक है। अगर नहीं है फ्लोराइड वाटर में तो हम ऐड करेंगे, अगर ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा है तो फिर हम रिमूव करेंगे। केमिकल पैरामीटर नाइट्रेट्स डिज़ायरेबल लिमिट 45, मैक्सिमम 45। कैल्शियम मिलीग्राम पर लीटर कितना है 75 और मैक्सिमम कितना है 200। आयरन 0.1 to 0.3 और मैक्सिमम कितना है 1। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो देखिए, जब भी हम कभी वाटर को ट्रीट कर रहे हैं तो जनरली इतनी यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी यूनिट्स हैं, एयरेशन, केमिकल यूज़, स्क्रीनिंग, केमिकल मेथड्स, सॉफ्टनिंग, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन। हर एक यूनिट का अपना अपना काम है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि कौन सी यूनिट है और उसका क्या फंक्शन है। तो देखिए, जनरली यूनिट्स कितनी हैं वो मैंने बता दी हैं। तो फर्स्ट यूनिट को देखते हैं एयरेशन और केमिकल यूज़। एयरेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को एयर के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, एयरेशन। एयरेशन में हम क्या करेंगे, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में लाएंगे। अब इससे होगा क्या, जितने भी गैसेस हैं या वॉलेटाइल मटेरियल हैं वो आसानी से क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो जनरली जितने भी मटेरियल्स हैं जो कि कलर कॉजिंग मटेरियल हैं या फिर जो स्मेल कॉजिंग मटेरियल है, वो सब क्या हो जाते हैं, एयरेशन में रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट है केमिकल यूज़। इसी में तो केमिकल यूज़ भी हम इसीलिए करते हैं ताकि क्या हो, टेस्ट, ओडर और कलर रिमूव हो जाए। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग हम क्यों करते हैं, हम कभी भी जब वाटर को हमको जब वाटर को ट्रीट करना है या वाटर को कहीं पर भी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना है, सबसे पहला काम होता है, हमें स्क्रीन लगा देते हैं। स्क्रीन मतलब एक जाली जैसा लगा देंगे, जिसमें क्या होगा, बड़े बड़े पार्टिकल्स वहीं बाहर रह जाएंगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स सिर्फ आ पाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमने बहुत सारा फ्लोटिंग मैटर को वहीं पर स्टॉप कर दिया, तो हमारा ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल मेथड। हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं किस चीज़ को रिमूव करने के लिए। जैसे मान लीजिए आयरन है, मैंगनीज़ है, इनके क्या है, कुछ चार्ज पार्टिकल हैं, तो इन चार्ज पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अपोजिट चार्ज पार्टिकल मटेरियल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सॉफ्टनिंग। देखिए, अगर आपके वाटर में हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, अगर आपके मतलब जो भी आप वाटर यूज़ कर रहे हैं उसमें लेदर फॉर्म नहीं हो पा रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सॉफ्टनिंग यूनिट भी लगानी पड़ेगी, जिसमें क्या होगा, वाटर की हार्डनेस जो होगी वो रिमूव हो जाएगी। सेडिमेंटेशन। मान लीजिए जो आपका वाटर है उसमें टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उस वाटर को थोड़े टाइम के लिए किसी एक टैंक में सेटल होने देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। अगर हम थोड़ी देर के लिए सेटल होने देंगे तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। कोआगुलेशन क्या होता है, जब आप जो भी सस्पेंडेड मैटर की बात कर रहे हैं, वो सस्पेंडेड मैटर, कुछ मैटर होंगे जिनका साइज़ बड़ा रहेगा, लेकिन वहीं पर कुछ मैटर्स होंगे जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा। तो जो बड़े पार्टिकल्स रहते हैं वो आसानी से ग्रेविटी की हेल्प से सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करें तो वो क्या रहते हैं, वो सस्पेंशन में ही रहते हैं वाटर में। तो अगर आपको उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करना है तो आपको एडिशनली कुछ ऐसी चीज़ मिलानी पड़ेगी जिससे क्या हो जाए, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो आपस में मिलके एक बड़ा फ्लॉक बना लें। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कुछ ऐसा केमिकल ऐड करेंगे जिससे वो छोटे छोटे पार्टिकल मिलके आपस में एक बड़ा फ्लॉक्स बना ले, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्लॉक्यूलेशन या फिर कोगुलेशन, ठीक है। हम कोई कोगुलेंट ऐड करेंगे। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, अब हमने क्या किया है, सेडिमेंटेशन कर लिया, कोगुलेशन कर लिया है। अब देखिए, अभी भी हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स बच जाएं। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनका ये कब रिमूव होंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। रिमेनिंग ऑफ कोलॉइडल डिजॉल्व मैटर्स एंड बैक्टीरिया, हो सकता है कुछ बैक्टीरियाज हों तो वो किसकी हेल्प से रिमूव हो जाएंगे, फिल्ट्रेशन की हेल्प से। लास्ट प्रोसेस है डिसइंफेक्शन। आपने जब सारी प्रोसेस कर दी हैं तो आप क्या करेंगे, वाटर में कुछ ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे वो वाटर जो है उसमें जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो मर जाएँ और इन फ्यूचर कंटामिनेशन के चांसेस क्या हो जाएँ, रिड्यूस हो जाएँ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट सोर्सेज
जैसे कि फर्स्ट सोर्स है ग्राउंड वाटर एंड स्प्रिंग वाटर फेयरली फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। अगर आपके पास ग्राउंड वाटर है या फिर स्प्रिंग वाटर है, ठीक है, जिसमें कंटामिनेशन के कोई चांसेस नहीं थे, तो आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्राउंड वाटर विद केमिकल्स एंड मिनरल एंड गैसेस, अगर ग्राउंड वाटर में केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं और गैसेस हैं, तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो एरेशन की, गैसेस रिमूव करने के लिए, उसके बाद कोगुलेशन की, अगर क्या है कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं तो, और उसके बाद लास्ट में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन की। उसके बाद है लेक सरफेस वाटर रिजर्वॉयर विद लेस अमाउंट ऑफ पोल्यूशन। अगर लेक का वाटर है तो देखिए लेक का वाटर ऑलरेडी स्टिल वाटर है, तो जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो ऑलरेडी सेटल्ड हो चुके हैं। तो अगर वहाँ पर पॉल्यूशन कम से कम होता है तो हम सिर्फ डिसइंफेक्शन करके वाटर को सप्लाई के लिए भेज सकते हैं। अदर surface sources such as river, canals and impounded reservoir with a considerable amount of pollution, कंप्लीट ट्रीटमेंट। अगर क्या है कोई सा भी सोर्स है और वहाँ पर क्या है कंसिडरेबल पोल्यूशन है, तो हमें क्या करना पड़ेंगे? सारे ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं एयरेशन। एयरेशन रिमूव्स odor, taste due to volatile gases like hydrogen sulfide and due to algae and related organisms. Aeration also oxidize iron, manganese, increase dissolved oxygen content in water, remove CO2 and reduce corrosion and remove methane and other flammable gases. जितनी भी फ्लेमेबल गैसेस हैं या फिर जितने भी वॉलेटाइल मटेरियल जो कि आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, वो क्या होंगे? जब वाटर जो है हम उसे एयर के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये जितनी भी चीज़ें वो सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, और एयरेशन से हमें क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी मिलेगी, तो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। टाइप ऑफ एयरेटर्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एयरेटर कितने टाइप के होते हैं। ग्रेविटी एयरेटर, स्प्रे एयरेटर, डिफ्यूज्ड एयर एयरेटर, मैकेनिकल एयरेटर। ठीक है, तो ग्रेविटी एयरेटर में दो टाइप के हैं, कैस्केड और कोन एयरेटर। कैस्केड में क्या है? एक ऐसे सर्कल बने हुए हैं जो कि नीचे सीढ़ियों की तरह जा रहे हैं। ठीक है, कैस्केड में क्या किया हमने? एक जैसे फवारा होता है वैसे ही कुछ बना हुआ है। हम वाटर को क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा एरिया से फ्लो करवाएंगे, तो जितने ज़्यादा एरिया से वाटर फ्लो करेगा उतना ज़्यादा वाटर एयर के कांटेक्ट में आएगा, उतना जल्दी क्या हो जाएगी? वाटर प्योर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोन एयरेटर। अगर हमने एक कोन की शेप में वाटर को हम रिमूव करवा रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कोन एयरेटर। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रे एयरेटर। अगर हम एक नोज़ल के थ्रू पानी को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? नोज़ल के थ्रू अगर पानी बहुत प्रेशर से जा रहा है तो उसका वॉल्यूम बहुत कम रहेगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम बहुत कम है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उससे बहुत ज़्यादा एयर मिल रही है, तो क्या करेगा? वो आसानी से रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट है एयर डिफ्यूजन एयरेटर। अगर हमारे पास प्रॉपर जगह नहीं है कि हम उसको क्या करें? एटमॉस्फेरिक एयर से कांटेक्ट करवाएं, तो हम क्या करेंगे? उस टाइम पे एडिशनली एयर ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो उसी को बोलते हैं एयर डिफ्यूजन एयरेटर। नेक्स्ट है उसके बाद मैकेनिकल एयरेटर। देखिए जो भी अभी तक हमने एयरेटर पढ़े थे वो कैसे थे? एक जो दो थे वो ग्रेविटी पर काम कर रहे थे, नेक्स्ट था वो उसमें हमने एयर ऐड कराई थी। अब मैकेनिकल एयरेटर दो टाइप के होते हैं जनरली, सरफेस एयरेटर और टरबाइन एयरेटर। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो जो सरफेस एयरेटर होता है ना, वो पार्शियली सबमर्ज्ड एक इम्पेलर की तरह काम करता है, जिसमें क्या होगा? वाटर आएगा, वो गोल गोल घूमेगा, एयर के कांटेक्ट में रहेगा और क्या करेगा? वाटर को प्योर कर देगा। वहीं पर अगर बात करते हैं टरबाइन की, तो वो भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, टरबाइन पर भी सेम चीज़ होगी, मतलब जैसे टरबाइन जिस तरीके से डिज़ाइन होती है और जिस तरीके से सरफेस एयरेटर डिज़ाइन होते हैं, हम उसी तरीके से इनको हम एयरेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सेटलिंग, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन प्रोसेस इन विच अ सस्पेंशन इज सेपरेटेड इनटू टू फेजेस। सेटलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो पहला पार्ट होगा वो होगा ओवरफ्लो, दूसरा पार्ट होगा अंडरफ्लो। ओवरफ्लो वो पार्ट होगा जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, जो कि रिमूव हो जाएगा, जो कि आगे बढ़ जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए। और जो स्लज है, जो कि जो सॉलिड्स थे जो ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल हो गए, उसे हम बोलेंगे अंडरफ्लो, जिसको हम या तो ट्रीट करके फिर कहीं पर डिस्पोज करेंगे या तो फिर हम उसको डायरेक्टली कहीं पर डिस्पोज कर देंगे। What are the various purpose of settling? To remove coarse dispersed phase, to remove coagulated and flocculated impurities, to remove precipitate impurities after chemical treatment, to settle the sludge after activated sludge process और trickling filter। ठीक है, तो इतने काम रहेंगे सेटलिंग के। सेटलिंग से मेन हमारा जो काम है वो यही है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स जो उनको सेटल करवाना।
नेक्स्ट अब देखते हैं अब हम लोग फिल्ट्रेशन में क्या होता है, द रिजल्टेंट वाटर आफ्टर सेडिमेंटेशन विल नॉट बी प्योर एंड मे कंटेन सम वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरियाज इन इट। देखो जो भी अभी वाटर सेटल हुआ है ज़रूरी नहीं है कि उसमें से सारी जितने भी पार्टिकल्स है वो सब सेटल हो गए हों। तो इन दिस केस, इस केस में क्या करेंगे हम, अब हम आगे उसको और प्योर करेंगे। तो प्योर करने के लिए अब हम किसका यूज़ करेंगे, फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, देयर आर 4 बेसिक फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म। द फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन, सेकंड वन इज इंटरसेप्शन, द थर्ड वन इज ब्राउनियन डिफ्यूजन एंड द लास्ट वन इज इनर्शियल। तो कौन जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स रहेंगे फिल्ट्रेशन के लिए, पहला क्या है, सेडिमेंटेशन। द मैकेनिज्म ऑफ सेडिमेंटेशन इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द एसोसिएशन सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखिए क्या होता है फिल्ट्रेशन में, हम एक कोई भी मतलब एक हमने क्या किया, एक टैंक ले लिया, उस टैंक में हमने कुछ फिल्टर मीडियम प्रोवाइड कर दिए। फिल्टर मीडियम जैसे कि सैंड, ग्रेवल्स एक्सेट्रा, ठीक है, और छोटा साइज़ भी ले सकते हैं हम पार्टिकल का। अब हम क्या करेंगे, वाटर को इससे पास करवाएंगे। तो जब हमने वाटर इसके अंदर फिल किया है तो कुछ वाटर क्या रहेगा, थोड़ी देर के लिए सेटल्ड रहेगा वहीं पर, कुछ वाटर क्या होगा, उन फिल्टर मीडिया से एंटर करेगा, इंटरेक्ट करेगा उन मीडिया से, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो जो वाटर के एंटर से एग्जिट की प्रोसेस है उसके बीच में 4 मैकेनिज्म फॉलो होंगे, सेडिमेंटेशन, नेक्स्ट है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन मतलब कि जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल है वो सब क्या हो जाएंगे, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उनके बीच में जो वॉइड्स है उसमें इंटरसेप्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमें क्या जो वाटर मिलने वाला है वो प्योर फॉर्म में मिलेगा। ब्राउनियन डिफ्यूजन टूवर्ड्स मीडिया ग्रैनुअल्स अकर्स फॉर अ वेरी स्मॉल पार्टिकल सच एज वायरस। ब्राउनियन डिफ्यूजन से क्या होगा, जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं या जितने भी हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, अगर हमारा जो फिल्टर मीडिया के वॉइड्स का साइज़ बहुत छोटा रहा तो क्या होगा, वो वहीं पर ही कहीं पर इंट्रैप्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनर्शिया। Attachment by inertia occurs when the larger particle moves fast enough to travel off their streamlines and bump into media grains, ठीक है। सेम चीज़ है कि जब भी कभी भी बड़े से पार्टिकल आएंगे और वो जब बड़े पार्टिकल किसी फिल्टर मीडिया से पास होंगे तो क्या हो जाएंगे, उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज़ है वो सब उसी में इंट्रैप्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें हमें क्या दिख रहा है, एक फ़िल्टर बेड है, उसके नीचे ग्रेवल, सपोर्टेड ग्रेवल है और ऊपर एक स्यूज लेग की लेयर है, ठीक है। रॉ वाटर एंटर किया, जो एक्स्ट्रा वाटर था वो ओवरफ्लो से बाहर चला गया, ठीक है। यहाँ पे वाटर ने एंटर किया, फिल्टर बेड से पास होके गया, पास होने के बाद क्या हो गया, वो नेक्स्ट दूसरे टैंक में हमने उसको स्टोर करके रख दिया। चलिए अब जो लास्ट है वो है डिसइंफेक्शन मेथड। अब हमारा जो वाटर हमने फिल्ट्रेशन बेड से पास करवा दिया है, अब उसके बाद हमने सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस कर लिए। अब हम चाहते हैं कि ये जो वाटर है इसमें जो भी कंटामिनेशन, अगर अभी भी कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बचे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। तो उन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन, जिससे हम जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनको भी रिमूव करेंगे और इन फ्यूचर कंटामिनेशन के जो चांसेस हैं उसको भी कम करेंगे, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं, द फिल्टर्ड वाटर में नॉर्मली कंटेन सम हार्मफुल डिसीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन इट। दीज बैक्टीरियाज मस्ट बी किल्ड इन ऑर्डर टू मेक द वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। द प्रोसेस ऑफ किलिंग दीज बैक्टीरियाज इज नोन एज डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन। अब कौन कौन से मेथड है डिसइंफेक्शन के, पहला मेथड है बॉइलिंग, दूसरा मेथड ट्रीटमेंट ऑफ विद एक्सेस लाइम, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट विद ओजोन और लास्ट है क्लोरिनेशन। बॉइलिंग सबसे बेसिक और सबसे पुराना मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक बॉईल करते हैं। उससे क्या होगा, जितने भी उसमें बैक्टीरियाज हैं वो सब क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। वाटर क्या हो जाएगा, हमारा पीने लायक बन जाएगा। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट विद एक्सेस लाइम। लाइम हम किस लिए यूज़ करते हैं, सॉफ्टनिंग के लिए। लाइम अगर हम ऐड करेंगे तो जो वाटर की हार्डनेस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर मैं लाइम को मैं लाइम को अगर एक्सेस में यूज़ करूँगी तो वो क्या करता है, वो जो जितने भी जर्म्स हैं उनको भी किल करेगा। कैसे, पीएच को बढ़ा के, जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाएगा जितने भी जर्म्स हैं वो क्या, जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच पर ही वर्क करेंगे। उससे ज़्यादा अगर पीएच बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो रिमूव होने लगेंगे, ठीक है। तो हम एक्सेस लाइम से भी कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सेस लाइम में दिक्कत ये है कि जो पीएच रहेगा वाटर का वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर हमें नेक्स्ट एक और प्रोसेस करनी पड़ेगी जिससे हम उसका जो लाइम है उसके पीएच को मेंटेन कर सकें, मतलब जो वाटर है उसके पीएच को बैलेंस कर सकें। ट्रीटमेंट विद ओजोन। Ozone readily breaks down into normal oxygen and release nascent oxygen. The nascent oxygen is a powerful oxidizing agent and remove the organic matter as well as bacteria from the water.
ओजोन मीन्स O3, हम O3 को जैसे ही ऐड कराएंगे वो स्प्लिट हो जाएगा O2 में और O में, ठीक है। तो जैसे ही हमने ओजोन ऐड कराई क्या होगा, वो बहुत जल्दी से ऑक्सीडाइज करना चालू कर देगा चीज़ों को, तो उसके कारण भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लास्ट है क्लोरीनेशन। द germicide action of chlorine is explained by the recent theory of enzymatic hypothesis, according to which the chlorine enters the cell wall of bacteria and kill the enzymes which are essential for the metabolic process for लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करता है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको बहुत आसानी से रिमूव कर देता है, और क्लोरीनेशन सबसे इफेक्टिव मेथड है किसी बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है, हमने वाटर डिमांड के बारे में पढ़ा है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा है, पीक डिमांड के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा हमने एयरेशन, डिसइंफेक्शन, सेडिमेंटेशन, फ्लॉक्यूलेशन और डिसइंफेक्शन, इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली है। ट्रीटमेंट कैसे होता है, वाटर डिमांड क्या होती है, कितनी वाटर डिमांड होती है, वाटर डिमांड निकालते कैसे हैं, और कुछ कुछ हमने परमिसिबल वैल्यूज़ पढ़ी हैं, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस क्लास के बाद। ओके बच्चों, थैंक यू।